Assalamu alaikum. How are you all? My name is Saima Mirza. I'm your teacher of social studies. Today we are going history unit number 4 page number 61 to 68. Please open up your books page number 61. We are, our topic is Delhi Sultanate. As we have read before, Delhi Sultanate was the first Muslim empire in the subcontinent that lasted for 320 years. 5 dynasties ruled over India: the Mamluk, जिन्हें slave dynasty भी कहते हैं, the Khiljis, तुगलक, सैयद and लोदीस. इसकी बुनियाद रखी थी बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है. ठीक है. उसके बाद स्लेव डायनेस्टी के दूसरे फाउंडर थे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर उनकी बेटी रजिया सुल्ताना एंड देन बेसिकली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन. फिर आती है खिलजी डायनेस्टी, उसमें सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पढ़ना है. अब सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश. इल्तुतमिश बेटा ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव किंग. ही वाज सक्सीडेड कुतुबुद्दीन ऐबक वाज सक्सीडेड बाय हिज सन आराम शाह. जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आराम शाह लैक्ड द एबिलिटी एंड प्रूव्ड टू बी क्वाइट इनएफिशिएंट. सो द नोबल्स, वहाँ के अशरफा जो थे, इनवाइटेड शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक and governor of Badin, to ascend the throne. Iltutmish accepted the invitation and defeated Aram Shah in battle near Delhi. He had to face many number of difficulties. At that time, Tajuddin Yildiz, the ruler of Ghazni, and Nasiruddin Kabadja, ruler of Sindh, they had refused to recognize his sovereignty. So first Iltutmish consolidated his authority in the areas of Delhi, Badin, Oudh and Banaras. In 1226 CE, Iltutmish defeated and captured Yildiz. In 1228, he marched against Kabadja and defeated him near Bakhar. So there was a time of Mongol when the Mongol appeared for the first time on the banks of the river under Genghis Khan. In the next slide, I will tell you about the Genghis Khan. Genghis Khan attacked Jalaluddin, the Shah of Khwarizm. So, major contribution of Sultan Shamsuddin Iltutmish. He considered the Delhi Sultanate after the death of Qutbuddin Aibak. Iltutmish was a prominent Sultan of Delhi. Iltutmish introduced the silver tanka coin on Arabic pattern and established the military force. He made Delhi a major center of political power in India. कुतुब मीनार बेटा जैसे कि आपको पता है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में शुरू हो चुका था, बट इट वाज कंप्लीटेड इन सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश रेन. ही डबल द साइज मस्जिद कुव्वत इस्लाम, जिस मस्जिद कुव्वत इस्लाम भी बेटा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, लेकिन उसका साइज डबल कर दिया था. जामिया मस्जिद शमसी दिल्ली में, और उसके अलावा उसने अपनी एक नसीरिया मदरसा, एक कॉलेज टाइप बनाया था जिसे नसीरिया मदरसा भी कहते हैं. 1229 में बेटा खलीफा बगदाद का जो खलीफा था, उसने उसे सुल्तान ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था. 1236 में he died on 1236. His son Ruknuddin Feroz, he was incapable person. He was defeated by nobles. अशरफिया ने उसे शिकस्त दे दी और उसकी बेटी रजिया सुल्ताना ने उसे रिप्लेस कर लिया. अब हम चंगेज़ खान के बारे में बात करते हैं कि चंगेज़ खान कौन था. बेसिकली वो एक मंगोल था. 1162 में पैदा हुआ, लेक बेकल के करीब मंगोलिया का इलाका था. He was the warrior ruler. He established Mongol Empire in 1206. He united the nomadic tribes. They wonder who were nomadic peoples. Nomadic कौन होते हैं? They were wandering from place to place. वो लोग जो एक जगह पे नहीं रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते रहते हैं, उनको हम nomadic people कहते हैं. ठीक है. तो they lived in small family groups in lands of Central Asia, modern day Mongolia. चंगेज़ खान जो था, उसने इन तमाम मंगोल ट्राइब्स को यूनाइटेड किया और एक मंगोल डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी. और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 1221 में मंगोल अपीयर हुए थे रिवर इंडस के किनारे, और उन्होंने जलालुद्दीन जो ख्वारिज़्म का शाह था उस पर हमला किया था. और वो जलालुद्दीन जो था, उसने फिर उसके बाद क्या किया था, वो ही आस्क्ड शेल्टर फ्रॉम इल्तुतमिश, बट द सुल्तान डिड नॉट विश टू अट्रैक्ट चंगेज़ खान एंड wrath and refused the request. Genghis Khan defeated Kabadja, plundered Sindh and left for Persia. Thus, India was saved from a great calamity. अब हम बात करेंगे रज़िया सुल्ताना की.
रज़िया सुल्ताना जो थी, she was a great ruler. She was the first Muslim lady who sat on the throne of Delhi. She had all the administrative qualities necessary for a king. In spite of all this, her rule ended after a brief period of 3 years and a half. What was the reason? Do you know? The main reason था that just she was a woman. जो नोबल्स थे वहाँ पे वो पसंद नहीं कर रहे थे कि कोई औरत उनके ऊपर हुकूमत करे. वो समझते थे कि जी औरतें जो हैं दे आर वीक, दे हैव टू जस्ट स्टे एट होम. देन फिर जब वो अनाटोलिया की देन जब रज़िया अल्टोनिया में मार्च के लिए गई, वहाँ पे रेबल थी फोर्स अल्टोनिया की, तो उन्होंने उसे उसके ट्रूप्स ने उन्हें कैद कर लिया. फिर बहराम शाह को जहाँ दिल्ली में नोबल्स ने उसको तख्त पर बिठा दिया. अपनी वीकनेस को जानने के बाद रज़िया सुल्ताना ने अल्टोनिया से शादी कर ली और दोबारा से अपना तख्त हासिल करने की कोशिश की. इन अक्टूबर 1240 रज़िया एंड अल्टोनिया वर डिफीटेड बाय मुइजुद्दीन बहराम. उनको मुइजुद्दीन बहराम ने शिकस्त दी. रज़ियाज हाफ ब्रदर, शी वाज किल्ड ऑन द बैटलफील्ड, और उसको वहाँ पे कत्ल कर दिया गया. रज़िया डाइड ऑन अक्टूबर 15, 1240 एट द एज ऑफ 35 की थी. देन पीरियड शुरू होता है सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन का. जैसा कि हमें पता है सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद जो थे ये इल्तुतमिश के सबसे छोटे बेटे थे. रज़िया सुल्ताना के बाद इन्हें बहराम शाह को बिठाया गया तख्त पर. बहराम शाह के बाद सुल्तान नसीरुद्दीन को तख्त पर बिठाया गया. तो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद जो थे वो इल्तुतमिश के सबसे छोटे बेटे थे, लेकिन उनके बाद उनका कोई भी बेटा नहीं था, जिसकी वजह से बलबन जो था उसको उनके सक्सेसर के तौर पर नॉमिनेट कर दिया गया और उन्हें तख्त पर बिठा दिया गया. बलबन उस टाइम 60 ईयर्स ओल्ड थे और उन्हें उस टाइम ग़ियासुद्दीन का टाइटल दिया गया. ग़ियासुद्दीन बलबन के नाम से वो जाने जाते हैं. उस टाइम मंगोल जो थे वो बहुत ज़्यादा थ्रेट कर रहे थे. ही वॉज अ केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर मिलिट्री ट्रेडर. उसने इंटरनल रिबेलियस और को भी ख़त्म किया और मंगोल्स को भी शिकस्त दी. ही डाइड ऑन 1287 और वो 1287 में वफात पा चुके थे. इसके बाद खिलजीज का जिक्र आता है कि खिलजीज ने कैसे स्लेव डायनेस्टीज को ख़त्म किया. बलबन की डेथ हुई 1287 में. नोबल्स ने क्या किया कि उन्होंने बलबन का ग्रैंडसन था केकुबाद, उनको तख्त पर बिठा दिया. वो एक केयरलेस पर्सन था और एंड ही लेफ्ट द स्टेट इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर Nizamuddin, he was killed by Sultan order, and after that death of Sultan, his 3-year-old son came, उसको तख्त पर बिठा दिया गया. अभी पहले ये रूल था कि जो बादशाह है उसी का आगे से आगे, उसको जब तक वो मतलब किसी को छोड़ के नहीं जाता उसके तख्त पर उसको बिठाया जाएगा. नहीं उसका बेटा, नहीं तो उसका बेटा. ठीक है. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसने he had fought many successful battle against the Mongols, was called to Delhi as Minister of War. On 13 June 1290 फिरोज murdered कैमूर. फिरोज ने क्या किया, उसने कैमूर को कत्ल कर दिया और तख्त पर कब्जा कर लिया और अपनी खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद कर दी और स्लेव डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया. अब आप ये याद रखें कि फ़िरोज़ जो है, जलालुद्दीन फ़िरोज़ जो हैं, इन्होंने 13 जून 1290 को कैमूर का मर्डर करने के बाद खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी. खिलजी चीफ जो था मलिक फ़िरोज़ को जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह भी कहते हैं, उसने 1290 पे तख्त के ऊपर बैठा. सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, इनका नाम रियल नेम हम पहले पीछे बात कर चुके हैं, मलिक फ़िरोज़ था. गुजरात, रणथंभौर और चित्तौड़ जैसे इलाके इन्होंने फतह किए थे. दूसरे प्रीवियस सुल्तान की तरह जलालुद्दीन खिलजी अपने टॉलरेंस और काइंडनेस की वजह से जाना जाता है. मलिक चुंजू जो था नेफ्यू था बलबन का और कारा का गवर्नर था. उसने इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दी और अलाउद्दीन खिलजी को एंड वाज डिफीटेड. अलाउद्दीन खिलजी लेड अ रेड ऑन देवागिरी पर अटैक किया एंड प्रेजेंट डे जो महाराष्ट्र का इलाका था, विदाउट जलालुद्दीन परमिशन. अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, उसने जलालुद्दीन की परमिशन के बगैर देवागिरी का इलाका जिसे महाराष्ट्र कहते हैं उस पर
अटैक किया। अब सुल्तान जो था उसने राजा रामचंद्र देवा को शिकस्त दी थी। Sultan was informed of the success of his nephew. He went to meet him at Kara where he was murdered. जलालुद्दीन was assassinated by his nephew Alauddin Khilji. ठीक है, अलाउद्दीन अब खिलजी के बारे में बात करते हैं। He was the Sultan of Delhi 1296 से 1316 तक था। He was known for his military conquest, administrative reforms in Delhi Sultanate. He was a controversial and powerful ruler. अब उन्होंने बहुत से मंगोल इन्वेजन हमले जो थे उनके दौर में हुए, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन हमलों का नाकाम बनाया। बहुत स्ट्रेटेजिकली डिफेंस किया था अपने इलाके को उन्होंने। जैसे 1299, 1305, 1303, 1306 में मंगोल्स ने अपने हमला किया था। ही यूज मिलिट्री टैक्टिक्स एंड फोर्टिफिकेशन टू प्रोटेक्ट दिल्ली। फोर्टिफिकेशंस क्या, यानी उसने किले बना के उसने दिल्ली को प्रोटेक्ट किया था। हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है, he issued a number of regulations to control the prices of various goods and necessities of life. He introduced price control measures to keep the cost of the new army at a low level. He brought down the prices of commodities. What are commodities? Commodities होती हैं बेटा goods, चीज़ें, to meet the expenses of the army. यानी वो चाहता था कि जो आर्मी है उसको चीज़ें अच्छे आराम से मिल सकें, कम कीमत पे मिल सकें। Some historians are of the view that Sultan controlled the prices of the needs of life for the benefits of general public. अब उसने क्या किया? इंट्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन एंड प्राइस कंट्रोल सिस्टम। उसके लिए उसने अपने 2 मार्केट ऑफिसर्स अपॉइंट किए, जिन्हें शाहाना मंडी था, एक जो सुप्रीडेंट कहलाता था ग्रेन मार्केट, गल्ला मार्केट का। ही चेक द शॉपकीपर्स हु ब्राउट ग्रेन रेगुलरली एंड सोल्ड इट एट फिक्स्ड रेट्स। एक और ऑफिसर था दीवाना रियासत। He was in charge of cloth and general market. He maintained a register in which the names of the merchants were entered. Besides those offices, the Sultan also appointed a number of spies who sent their reports to him about the market condition. His price control system was one of the wonder of the time. उसके अलावा इसकी बहुत सारी, आप ये कह सकते हैं कि कोई अगर कभी ड्राउट, फैमिन, इस टाइप की कोई चीज़ होती थी तो उसमें वो लोगों को इमरजेंसी की सूरत में कहता था कि उतना ही राशन देना है, उतना ही सामान देना है जितनी उनको ज़रूरत है। सिस्टम ऑफ राशनिंग वाज न्यू आइडिया ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एंड प्रूफ ऑफ हिज विजडम। हिज प्राइस कंट्रोल सिस्टम वाज वन ऑफ द वंडर्स। ही डाइड इन 1316 CE। अच्छा जी बेटा, ये क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस हैं, 1 वर्ड आंसर्स हैं, जिनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। रीडिंग आप कर चुके हो, इसका सोल्यूशन भी मैं आपने पहले अपनी नोटबुक पे उतारना है। इनको टॉपिक लिखना है, डेट एंड डे डालनी है, पेंसिल से आंसर्स लिखने हैं। इसके जो मेन आंसर्स हैं वो हम फिर चेकआउट करेंगे इकट्ठे मिलके। देन ये शॉर्ट क्वेश्चन है 3, इसी से रिलेटेड आप लोगों ने ये लिखने हैं अपनी नोटबुक में, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। और अपना होमवर्क जो है आप लोगों ने फ्राइडे तक सबमिट करवाना है। हिस्ट्री की नोटबुक्स पे आपने करना है टाइटल पेज आपका बना हो। उसके अलावा आपने इसमें पिक्चर्स लगा सकते हैं, जितनी पर्सनैलिटीज़, कोई सी भी पर्सनैलिटीज़ के बारे में, इनके मोन्यूमेंट्स के बारे में कुछ भी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।